Hey students, are you taking antibiotics or have you ever fallen ill? Let me take an example to tell you what I want to say you. Suppose students, your health is doing fine. You are playing, running around, attending school and engaged in various activities. Suddenly, one fine day, you feel feverish, have a blocked nose or you just feel like sleeping and your body aches. It clearly states that your body is not fine. When your health fails and your body does not function in regular manner, it means you have fallen ill. With new video and new chapter of class 9th, Why Do We Fall Ill? I welcome you all on my channel Bio For You. I am Monica Kashyap, PGT Biology teacher in SKS International Gurukul. Dear students, we have to find out answer of highlighted question on my video front page. And question is, why do we fall ill? I have posted some animations here so that you can clearly understand what I want to tell you. Without wasting too much time, let's go ahead to find out the answer of this question. Are you healthy or you want to be healthy? I will tell you 12 tips to be healthy that was shared by WHO, World Health Organization. Before discussing my topics, I want to say you here are some interesting facts that you should know, and I have also brought some questions for you in the end of my video. So, what are the topics of this chapter? First is health, then disease and its types, causes of disease, antibiotics, principle of treatment, principle of prevention. Right? These are the topics that I will discuss with you. Students, before discussing 12 tips to be healthy, I want to tell you what is health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. What does it mean? It means physical means your body should be fit from outer side as well as from inner side. There should be no disease. Then mental means how do you behave with others, your friends, relatives, your neighborhood. Okay. Then social well-being means कि आप कितना जल्दी किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हो, आपका नेचर जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, आप किसी से एग्रेसिवनेस में बात करते हो नहीं करते हो, तो आपके सोसाइटी के साथ बॉन्ड्स कैसे हैं. अगर आप फिजिकली भी अच्छे हो, मेंटली बिहेव भी अच्छा करते हो दूसरों के साथ और सोशली भी आप ईजिली कनेक्ट कर जाते हो किसी के साथ, इट मीन्स यू आर हेल्दी. राइट नाउ व्हाट आर द 12 टिप्स टू बी हेल्दी. First is eat healthy. You have to take carbohydrates, vitamins, proteins, fats and minerals in your diets if you want to be healthy. Then be physically active. It means you have to do exercise at least for 10 minutes, right, if you want to be active. Then get vaccinated if required. अगर vaccination की ज़रूरत है, you should take it. Do not use any form of tobacco. As you all know, smoking is very harmful for us because it contains nicotine, so we should avoid it. Then avoid or minimize use of alcohol. We should avoid alcohol or any drugs because it can badly affect our body. Sixth point is manage stress for your physical and mental health. Means we have to manage our stress problems if we have any. And there are so many blogs on internet that you can find out how to overcome stress. Then seventh point is practice good hygiene. You have to clean your body as well as your surroundings to maintain your hygiene. ठीक है. Do not speed or drink and drive. It means while driving you should not drink and you should not cross your speed limit. Wear a seat belt while driving and helmet when cycling. Means you have to wear a helmet and seat belt while driving or cycling. Then practice safe sex. It is not for you, but those friends who are listening it, practice safe sex means you should use reproductive materials that are in market so that there should be no STD. It means sexual transmitted disease. You have to be safe during sex. Then regularly check your health. There should be properly checkup of your body within 1 month or 2 months. Breastfeeding, best for babies.
because it contains antibody immunoglobulin, that is IgA, and IgA is good for babies because it provides immunity to babies. Now these are the factors that determine better health. First is proper, balanced and nutritious diet. I already told you. Personal hygiene, clean environment and surroundings. Then healthy air, no pollution should be there in your surroundings. Regular exercise you should do at least for 10 minutes. Proper rest. At least sleep for 8 to 9 hours. Your body won't rest, so that body can function well, right? You should take proper rest. Good standard of living and economic status. So students, how will you differentiate between healthy and disease free? कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन पर्सन हेल्दी है और कौन डिजीज फ्री है? तो यहाँ पर देखिए, हेल्दी मीन्स स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, जिसको मैं समझा चुकी हूँ कि वो अच्छी होनी चाहिए तीनों स्टेट्स. डिजीज फ्री मीन्स कि देयर इज नो डिजीज, स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीज, की कोई बीमारी ना हो. फिर हेल्दी जो होता है वो किसको रेफर करता है? इंडिविजुअल की फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि उसकी खुद की बॉडी को और जो सोशल इन्वायरमेंट में जितने भी उसके कनेक्शंस हैं वो हेल्दी है या नहीं है. ठीक है. फिर उसके बाद ये क्या होगा? डिजीज फ्री, मतलब इसमें जब डिजीज फ्री की बात करेंगे तो वो सिंपल एक पर्सन की बात करेंगे. ऐसे ही फिर हेल्दी जो होगा उसकी क्या होगी? गुड हेल्थ होगी. बट जो पर्सन हेल्दी नहीं होगा उसकी हेल्थ गुड भी हो सकती है और उसकी हेल्थ बैड भी हो सकती है. देन डिजीज एंड इट्स टाइप्स. डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी डिस्टर्बेंस हुई अगर आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज. और ये किस वजह से होता है? अटैक ऑफ पैथोजेंस, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं. न्यूट्रिशियस डाइट ना ले रहे हो आप, बैलेंस डाइट ना ले रहे हो तब हो सकता है, या फिर पब्लिक हेल्थ की वजह से हो सकता है. जैसे देखिए, ये एक पेशेंट है, डॉक्टर इसको क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट दे रहे हैं. ठीक है. सेम हेयर, सेम पेशेंट इज हेयर. क्या होता है कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है अगर आप की बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली ना हो रहे हो और आप अच्छा फील ना कर रहे हो. देन टाइप्स ऑफ डिजीज, राइट? टाइप्स ऑफ डिजीज में क्या आएगा? टू टाइप्स की डिजीज है, एक्यूट डिजीज देन क्रोनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज मीन्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो आपके कम टाइम के लिए बीमार रहती है उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज. एग्जाम्पल फ्लू और कॉमन कोल्ड. ये देखिए पिक्चर, कॉमन कोल्ड की पिक्चर है. तो ये क्या है? इट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम. देन क्रोनिक डिजीज मीन्स इट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट मीन्स ये लंबे टाइम तक रहती है. जैसे कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया. टीबी भी आपके लॉन्ग टाइम तक रहेगा, कैंसर है वो बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहेगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. एक्यूट मीन्स जो डिजीज आपकी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी. क्रोनिक मीन्स जो डिजीज आपकी लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी. जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्यूट में आपका कोल्ड आएगा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, और क्रोनिक में टीबी और कैंसर आ सकते हैं. कोल्ड क्या होता है कि पेशेंट इसमें इजीली रिकवर कर जाते हैं, बट जो क्रोनिक डिजीज होती है उसमें रिकवरी के चांसेस लेट होते हैं और वो प्रॉपरली रिकवर भी नहीं कर पाता पेशेंट. ठीक है. अब देखो, जो छोटे टाइम के लिए कोई आपको फ्लू हो रहा है तो उसमें आपका बॉडी वेट नहीं लूज होगा और टायर्डनेस भी आपको कम फील होगी एज कंपेरिजन टू आपकी क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि वेट भी लूज हो जाता है और टायर्डनेस भी आपको ज़्यादा फील होती है. फिर क्या होता है कि जो आपकी एक्यूट डिजीज है उसमें क्या होगा कि आपके वर्क और एफिशिएंसी पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि आपका कैंसर, टीबी और इनके डिजीज में आपका पड़ता है. तो ये आपका डिफरेंस है क्रोनिक और एक्यूट डिजीज का. स्टूडेंट्स, टाइप्स आप जान चुके हो डिजीज के. अब आपने पढ़ना है कोजेज, क्या क्या कारण हैं. तो फर्स्ट जो है इमीडिएट कोज और कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज. तो इमीडिएट कोज कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा कि जो एक्चुअल कोजेज होंगे, जो वो क्या होंगे, बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. जैसे कि इन्फेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. इन्फेक्शन होगी तो वो किसके थ्रू होगी? बैक्टीरिया, फंगी और वायरस और जर्म्स के थ्रू होगी. अगर वो नहीं हो रही उस केस में क्या होगा कि वो इंटरनल होगी. इट मीन्स कैंसर, टीबी वगैरह होगा. ठीक है. तो ये है इमीडिएट कोज. फिर आपके आते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज में. क्या होगा कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कोज तो नहीं है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या खुद की बॉडी का, बट बाहर के जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, जैसे पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट. ठीक है.
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्फेक्टियस कोज और नॉन इन्फेक्टियस कोज। यहाँ पे आपने पढ़ा कि क्या है, इमीडिएट कोज के ही 2 पार्ट्स हैं, है ना। तो आपको पहले इसको करने से पहले क्या देखना है कि कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड डिजीज क्या होते हैं। कॉन्जेंटल मतलब कि बर्थ से जो, जैसे कि दिल में छेद होना। फिर है एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है, जो बर्थ के बाद होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। अब एक्वायर्ड डिजीज के 2 टाइप होते हैं, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। तो इन्फेक्टियस मतलब कि जो बाहर से होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगी। नॉन इन्फेक्टियस मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होगी। ऐसे ही जो इन्फेक्टियस होती है वो क्या होती है, ट्रांसफरेबल है, मतलब कि कम्युनिकेशन डिजीज भी बोलते हैं इसको, कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। नॉन इन्फेक्टियस में क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही सोसाइटी के लोगों पर इस चीज का असर होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी इन्फेक्टियस, नॉन इन्फेक्टियस, इमीडिएट और कॉन्ट्रीब्यूटरी कोजेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इन्फेक्टियस डिजीज कौन सी होती है, वो डिजीज जो आपकी स्प्रेड होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, ये सारे क्या हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी, इट कॉजेज इन्फेक्शन, मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज इनसाइड आवर बॉडी। की जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस, कॉमन कोल्ड और एड्स, ये इन्फेक्टियस डिजीज है, मतलब इन्फेक्शन करने वाली है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ये डिजीज स्प्रेड नहीं करती। अगर कॉन्टेक्ट हो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई जिसको बीमारी है और एक हेल्दी पर्सन है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट हो, तब भी ये आपकी स्प्रेड नहीं करेंगी। ये जो डिजीज होती है ये जेनेटिक होती है, मतलब अपने ही बॉडी की डिजीज जो होती है वो होती है। जैसे कैंसर हो गया, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये खुद की बॉडी की है। ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर किसी और से हो जाएगा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी किसी और से हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। फिर है आपके डिफरेंस क्या है इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में। देखो मैंने पहले ही बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टियस डिजीज होती है और ये अपने आप ही होती हैं। फिर है आपके ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से होती हैं, जितनी भी बीमारी होती है इन्फेक्शन वाली बाहर से होती हैं। आपकी जो ये है इन्वायरमेंट से भी हो सकती है नॉन इन्फेक्टियस, और जो आपकी इंटरनल बॉडी की वजह से भी हो सकती है। इन्फेक्टियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकती है, नॉन इन्फेक्टियस बिल्कुल भी पास नहीं होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। फिर जो ट्रांसमिशन है इनका कैसे होगा, एयर, वाटर और वेक्टर्स के थ्रू होगा, और इनका जो ट्रांसमिशन है वो तो होता ही नहीं, आपको पता ही है कैंसर है वो स्प्रेड ही नहीं हो सकता, बॉडी में ही रहता है। फिर आपकी जो हाइजीनिक कंडीशंस है वो रिड्यूस कर सकती है इन्फेक्शन के चांसेस को। इसमें क्या है, आप कितनी मर्जी हाइजीनिकनेस कर लो, उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन से तो आप बच सकते हो, बट ऐसा है कि आपके जो इंटरनल डिजीज है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इन्फेक्टियस डिजीज का क्या एग्जांपल है, कोलेरा, टीबी, निमोनिया, चिकन पॉक्स, और इसका क्या एग्जांपल है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड कैंसर, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, आई थिंक आपको पता भी चल चुका होगा। कम्युनिकेबल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, और नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो ट्रांसफर नहीं होती। तो ईजिली आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए, अब इन्फेक्टियस एजेंट क्या है, एजेंट क्या होता है, बिचौला होता है ना। जैसे कोई काम करवाना हो तो बिचौले ही करवाते फिरते हैं ना हमारे इस साइड। तो क्या होता है कि अब इन्फेक्शन करने वाले कौन से बिचौले हैं, तो वो कौन से हैं, बैक्टीरियल डिजीज मतलब कि बैक्टीरिया होगा, वायरल डिजीज मतलब कि वायरस होगा इसमें, फिर फंगल डिजीज मतलब कि फंगस होगी, फिर प्रोटोजोआ होगा, फिर हेलमेंथिस होगा। तो यहाँ पर मैंने डिजीज मेंशन की हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक है, और यहाँ पर बताया हुआ कि कौन मीडिएटर होगा जिसकी वजह से आपकी इन्फेक्शन कोज होगी, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डिजीज देखते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप ऑफ डिजीज में क्या आएगा, एयरबोर्न डिजीज कौन सी है, एयरबोर्न डिजीज मतलब जो हवा के थ्रू फैलती है। जैसे कॉमन कोल्ड है, ड्रॉपलेट से हवा में आ गई तो वो स्प्रेड हो जाएगी। इन्फ्लुएंजा भी फ्लू है, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये एयरबोर्न डिजीज है आपकी। वाटरबोर्न डिजीज कौन सी है आपकी, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ठीक है। फूडबोर्न डिजीज कौन सी है आपकी, फूड पॉइजनिंग जिससे होती है, खाने के बाद आपको क्या होता है कि आपका जो मतलब एसिडिटी हो जाना, तो वो फूड पॉइजनिंग के अंदर आएगा। सेक्सुअल डिजीज में क्या होगा कि सेक्स के थ्रू अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, जैसे एड्स हो गया, साइफिलिस हो गया। फिर लाइफस्टाइल डिजीज मतलब कि पुअर हेल्थ कंडीशंस, सॉरी
पुअर हेल्थ कंडीशंस कह लो या पूरी पुअर लाइफस्टाइल बोल लो, जैसे कि आपका हार्ट डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी अमाउंट में क्या चीज़ खानी है। वेक्टर बोर्न डिजीज मतलब कि कोई मीडिएटर है जो बीमारी कर रहा है, जैसे मलेरिया और डेंगू फीवर में क्या होता है, मच्छर जो होते हैं एनोफिलीज है वो आपका क्या करेगा कि मलेरिया कोज करता है, ऐसे ही डेंगू का भी मच्छर है जो आपकी बीमारी को कोज करता है। एनिमल बोर्न डिजीज कौन सी होती है, रेबीज, ठीक है, कुत्ता काट जाता है तो उससे आपको क्या होती है, रेबीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या आएगा कि आप कैसे किसी डिजीज को ठीक कर सकते हो, तो इसमें देखो कि आप पहला स्टेप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो किसी भी डिजीज के इफेक्ट्स को। वो कैसे, पहले तो आप मेडिसिन ले सकते हो ताकि आपका जो फीवर है, पेन है वो कम हो जाए, और आपको क्या करना है, प्रॉपर कंप्लीट रेस्ट करना है। जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पर पर्सन है जो मेडिसिन ले रहा है, यहाँ पर इंजेक्शन ले रहा है, तो ये क्या सारी एंटीबायोटिक्स लेने से आपकी बॉडी का जो इफेक्ट्स हैं डिजीज के वो क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। सेकंड जो है वो टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, कि हमें पता है कि हमें ये बीमारी हुई है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स को लेकर अपनी बीमारी को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल्स होती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं आपके बायोकेमिकल पाथवेज को, जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया के जितने भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया जो भी अपनी केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, एंटीबायोटिक्स उनको ब्लॉक कर देती है और फिर वो आपकी बॉडी को बचाती है कि बैक्टीरिया आपको कोई इन्फेक्शन ना करे, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसके लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अब ये देखो क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर्ट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, की जो एंटीबायोटिक्स होती है वो आपकी इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा वर्क करती है वो किसके लिए करती है, बैक्टीरिया के लिए। कैसे करती है, ब्लॉक कर देती है उसके केमिकल पाथवेज को सारे के सारे। फिर ये क्या करती है, केमिकल पाथवे ब्लॉक हो गया तो ग्रोथ नहीं करेगा बैक्टीरिया, उसका मेटाबॉलिज्म खराब कर देगी और उसको क्या करेगी, किल कर देगी। एंटीबायोटिक से वो वायरस के लिए काम नहीं करती, क्योंकि वायरस किसी भी पाथवे को यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। होस्ट सेल मशीनरी मीन्स अगर वायरस ने आपकी बॉडी में एंटर कर लिया तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी के सेल्स हैं जो उनको यूज़ करेंगे, उनकी मशीनरी को यूज़ करेंगे ताकि वो प्रोटीन बना सकें। इसलिए एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती वायरसेस के लिए। अगर हमने वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करना है उस केस में हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, या एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए होते हैं उनको लेना पड़ेगा। फिर इन्फ्लामेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी सारे सेल्स को रिलीज करते हैं उस जगह पर जहाँ पर आपके माइक्रोब्स ने अटैक किया है, ठीक है। अब वहाँ से बॉडी सेल्स को भेज रही है कि उस जगह पर जाओ जहाँ पर आपकी बॉडी वेल फील नहीं कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोकल इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया, रेडनेस होगी, फीवर हो गया। जैसे अगर आपको कोई येलो वास्प, मतलब जिसको आप कहते हैं भीरड़ भी बोल देते हो, अगर वो आपको काट जाती है तो रेडनेस भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, पेन भी होता है, कई बार क्या होता है ज़्यादा काट जाए तो फीवर भी हो जाता है, तो उस चीज़ को आप बोलते हैं इन्फ्लामेशन। फिर डियर स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है नेटवर्क ऑफ सेल्स, मतलब कि आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो आपकी बॉडी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन करके रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। ऐसे ही फिर जब आपका इम्यून सिस्टम किसी डिजीज को देख लेता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं तो वो स्पेशल सेल्स को भेजता है जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इनको सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी में ब्लड के थ्रू इनका सर्कुलेशन होगा और जहाँ पर भी डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनको ये मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक जर्म्स या फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। एंटीजन जहाँ भी हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है वो एंटीबॉडीज को रिलीज करेगी और वो क्या करेगी, एंटीजन्स को लॉक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की कि हम रिकवर कर सके किसी भी डिजीज को, ठीक है, हम किसी भी बीमारी से बच सके, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ये है आपका इम्यून सिस्टम। अब आपके पास है डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब आप कैसे किसी बीमारी को रोक सकते हो। बिल्कुल ही,
तो पहला है कि आपको एक्सपोजर रोकना है। किसको रोकना है? एक्सपोजर रोकना है माइक्रोब्स का। वो कैसे रोकोगे? अगर एयर से आपको कोई डिजीज हो रही है तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, जो ओवर क्राउडेड एरियाज है उसमें आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको अपने माउथ और नोज को कवर करके रखना है जब भी आप कफ करो, स्नीज करो। सेकेंड पॉइंट है वाटर बोर्न डिजीज को कैसे रोक सकते हो? कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है। जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग को आपने अलाउ नहीं करना है, क्योंकि मॉस्किटोज होंगी तो उससे मलेरिया और डेंगू फैलेगा आपका, ठीक है। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हो? क्लीन इन्वायरमेंट में रह सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है कि इन्वायरमेंट को प्रॉपरली क्लीन करना है। ये सेम है जो मॉस्किटो ब्रीडिंग वाली बात मैंने बोली है, वो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो? बूस्ट कर सकते हो इम्यून सिस्टम को। वो कैसे? आपको जो अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है वो कैसे? हेल्दी डाइट ले लो आप, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो और हाइजीनिक कंडीशंस को आप मेंटेन करो, सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, तो ऐसे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। फिर ये तो आपका था जनरल मेथड, दोनों के दोनों पॉइंट्स। स्पेसिफिक मेथड में क्या आता है कि आपने क्या करना है, आपको बाहर से कुछ वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज लेनी पड़ेगी, जिससे आपका इम्यून सिस्टम क्या कर सके? फाइट कर सके बैक्टीरियाज के साथ या फिर दूसरे माइक्रोब्स के साथ। इससे क्या होगा? बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से आपकी जो बॉडी है अपने आप को बचाने में कामयाब रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डिस्कवरी कैसे हुई। मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने बार बार प्रूव करना चाहा कि हेलिकोबैक्टर है पेप्टिक अल्सर करता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर मीन्स सोर होता है जो क्या कहते हैं इनर स्टमक लाइनिंग पर हो जाते हैं, जैसे कि छाले मुंह में पड़ जाते हैं, सेम के स्टमक में होते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं बैरी जे मार्शल और जे रोबिन वैरिन, वो प्रूव कर रहे थे कि ये स्टमक में होता है और पेप्टिक अल्सर जो होता है इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर की वजह से। बट उस टाइम पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलते थे कि नहीं, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं ये सारे अल्सर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो सोल्यूशन था उनका, जिससे वो प्रूव कर रहे थे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो वो क्या कर रहे हैं, पेप्टिक अल्सर कर रहे हैं, उन्होंने खुद वो ड्रिंक कर लिया। फिर विद सम टाइम क्या हुआ कि उनका जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स है वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया? पेप्टिक अल्सर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? 2005 में उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला फॉर देयर डिस्कवरी, ठीक है। उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि साइंटिस्ट कितना बड़ा रिस्क लेते हैं अपनी डिस्कवरीज को प्रूव करने के लिए, है ना। अब देखो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? म्यूकस की इनर लाइनिंग है जो स्टमक की, उसको वो वीक कर देता है, और जो एसिड हमारे स्टमक में बनता है तो वो क्या करेगा? सेंसिटिव कर देगा हमारी इनर लाइनिंग्स को, और फिर जो बैक्टीरिया और एसिड होता है वो क्या करता है? इरिटेट करता है हमारी बॉडी की इनर लाइनिंग्स को। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आई होप यू विल रिमेंबर इट फॉर योर होल लाइफ टाइम। Dear students, I have mentioned here one chart. It shows disease, its causative organism, mode of transmission, control and prevention. It is very important chart. Here you can find out so many diseases, their organisms, transmission mode, control and prevention. I have time limit, so I am not going to tell you each and everything, but I will provide you this PDF in my description box. Okay my dear students? Students, are you ready to give answers of all these questions? If yes, then be honest for yourself and try to solve each and every question. If no, then you have to go through this video again and find out answer of all these questions. With this, I am going to finish my video. Hope I will meet you in next video soon, and I also hope that you would like my video and share it with your friends. Bye bye my dear students.